Hello students, now our next chapter is from civics, that is understanding secularism. As we have already discussed that India is a secular country in which we respect every religion and we live peacefully through the Indian constitution. As it is discussed, India is a free country and it is a secular country. Let's start with introduction that history provides us with many examples of discrimination, exclusions and persecution on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate members of the other religious communities. आपने एग्जाम्पल सुना होगा हिटलर का। हिटलर जर्मनी में डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि हिटलर क्रिश्चियन थे और हिटलर डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों को, ज्यूज़ को, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे ज्यूज़ को। ये क्या था कि एक सेक्युलरिज्म का एक हमारे यहाँ जो कंट्री में है सेक्युलरिज्म, उसका ये एग्ज़ाम्पल ये है कि हम लोग बहुत फ्री रहते हैं, हम लोग हर रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हिस्ट्री बताती है जहाँ पर रिलीजन के बेस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया। सो हमारा ये टॉपिक है कि कैसे हम दूसरों को एक साथ बना सकते हैं, अपने एक ग्रुप में बना सकते हैं। और इंडिया जो है उसमें हर तरह के रिलीजन हैं, 8 टाइप्स ऑफ रिलीजन हैं, और हम कैसे पीसफुली इस कंट्री में रहते हैं थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? So, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजन को बराबर माना गया है। हम लोग हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं, और अपना रिलीजन अच्छा है ये अच्छी बात है, लेकिन अपना ही रिलीजन अच्छा है ये गलत बात है। सो हम किसी भी रिलीजन को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक रिलीजन बात जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। अगर आप हर रिलीजियस बुक को देखें तो हर में आपको कॉमन ही बात मिलेंगी। What is secularism? The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to the separation of religion from the state. So, हमारी जो कंट्री है उसमें रिलीजन ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री कोई भी रिलीजन को ना ही बहुत ऊपर रखती है ना ही बहुत नीचे, हम सब लोग इक्वल है, भले ही वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। हमारे इंडिया में रिलीजन्स के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। वो अलग बात है कि आपको हर जगह एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पर रिलीजन बेस पे किसी को हम इवन रिलीजन हुआ, कास्ट हुआ, किसी बेस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। Why is it important to separate religion from the state? The most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will be most likely to be one group that is in a majority. Obviously, जिस भी country में religious wise होंगे वहाँ पे equal तो होंगे नहीं, कोई मेजॉरिटी में होगा, कोई माइनॉरिटी में होगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर दे, इसलिए वहाँ पर कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना दिया जाता। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of the other religions. इसलिए किसी भी कंट्री में कोई ये पावर नहीं देते हैं किसी भी रिलीजन को। अगर रिलीजन को पावर दे देंगे तो वो माइनॉरिटी वालों को ऑप्रेस कर देगा और उनको परसिक्यूट कर देगा। सो रिलीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोगों को समझें, उनके रिलीजन को समझें, ना कि उनको हम डिस्क्रिमिनेट करें किसी भी बेसिस पर। इसीलिए सेपरेट किया जाता है रिलीजन को और स्टेट को। स्टेट मीन्स यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। What is Indian secularism? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize this its objective to ensure the following. किस चीज़ को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को हम इंश्योर कर सकते हैं? That one religious community does not dominate other. Obviously, कोई भी एक रिलीजन कम्युनिटी जो है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती, ऑप्रेस नहीं कर सकती, किसी को नीचे नहीं दिखा सकती। That some members do not dominate other members of the same religious community. सेम रिलीजन में भी एक दूसरे को कोई ऑप्रेस नहीं कर सकता। हर किसी का फेथ अलग है, हर किसी का मानने का तरीका अलग है।
that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. ये हमारी फंडामेंटल राइट में भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम लोगों को बता सकते हैं। अपने रिलीजन की आप सबको तारीफ बताइए, सबको खूबी बताइए, लेकिन किसी भी रिलीजन की आप बुराई ना करें। In your book, it is given of the examples of Indian secularism, that about the government high school. You can see in your book about the Indian constitution, in the Indian secularism, the government high school, that in government school in Simapur students want to celebrate a religious festival. ये एग्जाम्पल है गवर्नमेंट हाई स्कूल का सीमापुर का, कि वहाँ के बच्चे एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जहाँ पर एक बच्चा कहता है, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू दिस इन दिस ईयर? सो टीचर कहते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festival are a public holiday so that we can celebrate these at home. तो टीचर का अपना अलग मानना था। बच्चों का रिप्लाई क्या है? I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school. Anyway, we were planning to celebrate it in our locality. स्कूल में मना कर दिया गया, गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल को मना कर दिया गया, क्योंकि टीचर का कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर किसी भी रिलीजन को हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल है आपकी बुक में, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। पहला कहता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर दैट यू वियर वन, वाई आर नॉट यू वियरिंग अ हेलमेट, डू यू वॉन्ट टू बी फाइन? सेकंड कहता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। ये दोनों की कॉन्वर्सेशन है। फिर फर्स्ट वाला कहता है, परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइंड? सो परमजीत कहते हैं, फॉर 6 वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वैरायटी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। ये सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स कहना चाहते हैं। सो बोथ एग्जाम्पल्स, द रिव्यू इज़, फर्स्ट के क्या रिव्यू है, द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन अ स्कूल would have been a violation of government's policy of treating all religions equal. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. This rule does not apply to private schools. हमारे स्कूल्स में देखिए, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम क्रिसमस भी बनाते हैं। सो ये सारे एग्जांपल्स क्या है कि हमारे स्कूल जो है वो सेक्युलर है। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्युलर बनने के लिए किसी भी रिलीजन को फोकस नहीं कर सकती, और ना ही किसी को फोर्स कर सकती कि वो इस रिलीजन को माने। सेकंड एग्जाम्पल था, परमजीत द सिख यूथ does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognize that wearing a pagadi, that is turban, is central to a Sikh religious practice, and in order to interfere with this allows an exception in the law. सो ऑब्वियसली जो पंजाबी होंगे, जो सिख होंगे, वो पगड़ी पहनते तो उनके ऊपर हेलमेट नहीं आ सकती, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती आप पगड़ी निकालिए और हेलमेट पहनिए। ये उनका रिलीजियस इंटरफेयर है। So next we will do in the point in Indian Constitution about this untouchability. Till then, just read the points in your book, compare it, and then we will discuss the problem regarding it. Thank you so much.